Hello everyone, today I'm going to explain class 4th English chapter The Old Stag. So this chapter is all about an old stag. He is very This is a very heartwarming story about an old stag who is loved by the animals, his fellow animals that were living in the forest. What happened when he falls ill? His friends come to visit him, but without realizing it, they eat the tender grass he needs to recover. The story teaches us the importance of kindness, empathy, thoughtfulness, and considering others' needs before our own. So let's start the chapter. In a lush forest, lush means green or flourishing forest lived an old stag who was known for his kindness. Each day he warmly greeted his fellow animals and birds. So एक ही बहुत ही फ्लरिशिंग फॉरेस्ट में एक ओल्ड स्टैग यानी कि मेल डियर रहता था जिसको किस लिए जाना जाता था ही वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस यू कैन से काइंडनेस जेनरसिटी के लिए उसको जाना जाता था ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स हर दिन वो क्या करता था अपने फेलो एनिमल्स को ग्रीट करता था और बर्ड्स को though the forest offered plenty of food it means कि forest जो था वो बहुत ही ऑफर करता था the forest contains so much of food plenty of food but the stag लेकिन जो stag था वो क्या प्रेफर करता था staying on a small hillock with tender grass but जो stag था वो क्या प्रेफर करता था he used to prefer to stay on a small hillock ठीक है that was covered with the tender grass tender you can say uh, soft delicate or young grass. The hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed. जो hillock था वो किससे कवर था सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से कवर था जिसको जो ओल्ड स्टैग था बहुत ही इंजॉय करता था Every day he would come down to meet his friend and all animals and birds loved him. हर दिन क्या था he used to come down and then he meet his friends and all the animals and birds loved him as you can see in the picture. One day, what happened? Now, what happened? As I've already told you, what happened when the stag fell ill? He struggled to reach the hillock. एक दिन वो बीमार पड़ गया और वो स्ट्रगल कर उसको बहुत ही परेशानी हो रही थी और बहुत ही यू कैन से ही वाज स्ट्राइविंग स्ट्रगल को आप बोल सकते ही वाज स्ट्राइविंग हार्ड टू रीच द हिलॉक हिलॉक तक पहुंचने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइव कर रहा था यानी स्ट्रगल कर रहा था मेहनत कर रहा था लिख देती हूँ यहाँ पे टू स्ट्राइव हार्ड to reach the hillock. The stag knew that fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. स्टैग को ये पता था कि वो जो फ्रेश हेल्दी फूड है और प्रॉपर रेस्ट ही है जिससे वो क्या होगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ while तो उसने क्या किया जो टेंडर जो सॉफ्ट ग्रास थी उसने उसको खा लिया और ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ while वो कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा The old stag could not go down the hillock to greet his friend. जो old stag था, he was not able or he couldn't go down to meet his friends. So after this, his friends became very worried. Worried means tensed. They when they learned that the stag was unwell, they came to check on him. And when they came to know, when they learned means जब उनको पता चला, when they came to know that stag is unwell, so they came to check on him. उसको देखने के लिए आए. Dear stag, how are you? asked a deer. सब उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? डियर ने पूछा. Too weak to come and meet you all. Stag ने क्या रिप्लाई किया? I am too weak to come down. I am not able to come down. I couldn't come down because I am not feeling well. Get well soon, dear Stag, said the deer. Deer ने बोला कि get well soon, जल्दी से ठीक हो जाओ. The animals wished him a speedy recovery and left. Animals जो उसके fellow animals थे, friends थे, उन्होंने क्या किया उसको speedy recovery उसको बोला कि जल्द अच्छे से और जल्दी ठीक हो जाओ और वहां से चले गए and they left. However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass. लेकिन what happened? वो बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट वो वापस जाने से पहले उन्होंने क्या किया
एनिमल्स ने जो भी फ्रेश ग्रीन ग्रास जो हिलॉक पे ग्रो हो रही थी, दैट वाज ग्रोइंग, उसको उन्होंने सारे उसके फेलो एनिमल्स ने क्या किया, दे ऑल एट दैट ग्रास। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। एलिफेंट ने क्या बोला? द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, दैट मीन्स ग्रास इज वेरी सॉफ्ट। I have never eaten such juicy green leaves, said Giraffe. जिराफ ने क्या बोला कि मैंने कभी नहीं पहले, I have never had such juicy green leaves. Word soon spread about the tender green grass. ऐसी जो है धीरे धीरे बात फैल गई. Soon all the animals who came to visit the stag, फिर क्या हुआ, सारे एनिमल जो उसको देखने के लिए आ रहे थे स्टैग को, feasted on the tender grass, यानी वो सब टूट पड़े किस पे, टेंडर ग्रास पे। उन्होंने सबको फीस मतलब इट्स अ टाइप ऑफ, यू कैन से आप मील, उन्होंने उसको खा लिया। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. जो भी उससे मिलना आता था वो ग्रास को भी खा लेता था। Soon there was not much grass left for the old stag. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब whoever came to meet old stag, they all ate the ग्रास। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वहां पर जो ग्रास थी वो बची ही नहीं, वो किसके लिए, फॉर ओल्ड स्टैग के लिए। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डेज पास, अब उसके क्या हुआ, वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, उसके फ्रेंड्स जो थे उनको बहुत ही बुरा लगा। ashamed, they realized how their greed had made them forget about their friend। उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने कैसे आउट ऑफ ग्रीडीनेस में, लालचीपन हो करके, उन्होंने वरेशियस हो करके, उन्होंने कैसे जो है ये भूल गए कि वो अपने फ्रेंड का खाना खा रहे हैं जो कि अनवेल है। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास was लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट एंड रिकवर। उनको समझ में आ गया कि अब स्टैग के लिए ज़्यादा ग्रास नहीं बची है। The animal decided to find food elsewhere in the फॉरेस्ट। एनिमल ने डिसाइड किया कि वो कहीं और जो है फूड को फाइंड आउट करेंगे फॉरेस्ट में, एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, और वो हिलॉक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड, कुछ उसमें से अपने फ्रेंड के लिए फ्रेश लीव्स भी लेकर आए। इट रेन्ड वेल दैट वीक, और बहुत ही तेज बारिश हुई उस दिन। सो अच्छी खासी बारिश हुई, तो द ग्रास जो पे सून ग्रू बैक वापस आ गई। एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगेन, जो ओल्ड स्टैग था उसको वापस से फूड मिल गया, अच्छा खासा जितना वो खा सकता था। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड उसको मिल गया। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, स्लोली धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली वो रिकवर हो गया। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनिमल्स ने क्या सीखा, नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबॉडी बट वी नीड टू यूज इट रिसोर्सेस वाइज। उसने क्या कहा कि इससे हमने क्या सीखा, और उनके फ्रेंड्स ने भी क्या सीखा कि नेचर के पास जो है इनफ है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है सबके पास, बट हम क्या करते हैं, वी नीड टू यूज इट रिसोर्सेस वाइजली, बट हमें क्या है, सारे रिसोर्सेस को जो है वाइजली यूज करना है, कॉशियसली यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द ओल्ड स्टैग। शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है इसकी होमेज, रेफ्यूजी। हिलॉक मैंने आपको बता ही दिया है कि स्मॉल हिल, और यू कैन से माउंट, रिकवरी, हील करना, टू गेट बेटर, टेंडर सॉफ्ट ग्रास, लश, ग्रीन रिच फ्लरिशिंग, स्टैग ओल्ड, और यू कैन से मेल्डियो।